है। तो मैं जल्दी एक स्टूडियो बनाने वाला हूँ। तेरी याद विच ही बीते मेरा शाम ते सवेरा। म्यूजिक सुनना जैसे सबको अच्छा लगता है वैसे मुझे भी अच्छा लगता है। किताबों की दुनिया ये है ख्वाबों की दुनिया, और उसका पर्पस यही रहेगा जो इंसान गाने का हुनर रखते हैं, गाना चाहते हैं लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता तो उनको स्टूडियो में इनवाइट किया जाएगा। और बुक्स की जो बात की, ये तो कम बुक्स हैं मेरे पास। बुक्स ऊपर अभी आपको लेकर जाएंगे, 4 से 5 लाख किताबें पढ़ी हैं। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ कुछ ही टाइम पहले बेटा ਇਹਦੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ क्या करेंगे पैसा, क्या करेंगे मनी, खुल गई है किस्मत जो मिल गई है सनी। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ। तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजार साल के दिनों 50 हजार। कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर हुनर बहुत है, वो पंजाब की धरती पे तो आई थिंक कैसी कैसी आवाज़ें हमें आई जो पूरी दुनिया में गूंजती हैं वो आवाज़ें, और जिनको सुन सुन के पूरी दुनिया मस्त हो जाती है। वो आवाज़ ਸਿੰਗਿੰਗ की आवाज़ पंजाब से निकल के आती है। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤ ਮਲਕਪੁਰੀ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਦਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਂਕਰ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਚੁਲਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਲੱਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। कैसे आप? ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡਾ ਹਮਦਰਦ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ੂ, ਜੋ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। मैं बोलना चाहूँगा ਦੇ ਵਿੱਚ ये है हमारे सरप्राइज, जो कि इन्होंने सरप्राइज दे दिया मुझे आकर। अरे भाई थैंक यू सो मच, क्या बात है। ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। मुबारक हो। बस ਬੜੀ आपका- ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਰੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਹੁਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। क्या ਸੋ बात है, खुशी है। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ये ਰੂਮ 'ਚ। इनका बड़प्पन है। मैं तो बस माँ सरस्वती जी की कृपा से कुछ गाने की कोशिश करता हूँ, और एक कार बाहर से बिल्कुल बेकार लगती है लेकिन अंदर से ब्रांड न्यू है। ਜੀ एक्चुअली यूज नहीं हुआ, काफी दिन से पड़ी है तो इसलिए ऐसा डस्ट आ गई इस पे, अदरवाइज बहुत ਕੋਈ अच्छी है। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਓ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ 2017 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਨੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ੂ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। नमस्कार जी, बकायदा- नमस्ते नमस्ते। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਵਾ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੇਤਨ ਭਗਤ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਆ। चेतन जी के सामने चेतन की बुक। अरे वाह, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ।
ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਆ। ਸੋ ਭਾਜੀ अगर गल करिए यादें ना यादें बन गई साडी। जी एक नन्ही सी बात कहूँगा, एक छोटा सा शेर मीर जी का है, वो आए हमारे घर पर ये खुदा की कुदरत है, वो आए हमारे घर पर ये खुदा की कृपा है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ये मेरे छोटे भाई हैं और ये मतलब क्रेडिट अपने आप को नहीं लेते, ये कुछ भी होता है तो कहते हैं कि किसी और ने उनके लिए किया, ये मुझे क्रेडिट देते हैं, इनका बड़प्पन है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो एक मेरा जो पहला सॉन्ग था यादें, बस उसकी प्रमोशन के लिए बटाला में मुझे चाहिए था कोई हेल्प करे मुझे, तो तब इनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हेल्प नहीं की मुझे, मुझे ऐसा एहसास दिलाया कि शायद दुनिया में अगर कोई मेरे क्या किसी भी सॉन्ग को प्रमोट कर सकता है तो वो चेतन जी हैं। बहुत ही अच्छे इंसान, इनके जज्बात इनके शब्दों में बाहर आते हैं और वाकई जब जब इनसे मुलाकात हुई, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मतलब वो यादगार बन गई। और जो कि हमारा गाना ही यादें हैं शुरुआत से, तो वो भी एक याद, मतलब वो भी एक याद है। सच यादें वहीं जो यादगार रहे और सच में इनके साथ बिताया गया एक एक पल यादगार है सच में। चेतन जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ कर दी। नहीं मैं इन्ने योग नहीं है क्योंकि तुम दस सकते कि मैं बकायदा ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, 2012 ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਂਕਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੈਵਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਾਲਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬਹੁ ਬਰਕਤ ਰਾਮ ਜੁਮਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੁਮਨ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੇਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਾदें ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਟਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? देखो फ्रेंकली स्पीकिंग म्यूजिक सुनना जैसे सबको अच्छा लगता है वैसे मुझे भी अच्छा लगता है। बस कहते हैं ज़िंदगी में कभी किसी को प्यार होता है ना तो उसके जज्बात बाहर आने लगते हैं, और मुझे भी प्यार हुआ था। मेरा पहला प्यार जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन उस फेलियर ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं, बस एक पॉजिटिव नोट पे मुझे ये समझ में आया कि ज़िंदगी में कैसे इंसान हर कुछ नहीं पा सकता, और कुछ ना होने से ये नहीं कि ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं। मुझे मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया और उसने ही मुझे मेरे जज्बातों को, जो मेरे वर्ड्स में मुझे गाने लिखने का शौक़ था, तो एक गाने को वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले गाने को मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया और हमने बनाए यादें। वो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, हम आपको लिंक भी शेयर कर लेंगे बाद में। तो यादें एक शुरुआत थी। उसके बाद मेरे दिमाग में आया, उसकी सफलता को देखते हुए और चेतन जी के सहयोग को सामने रखते हुए मुझे दिमाग में आया कि कभी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, टाइम इन द सेंस मैं अपनी जॉब में काफ़ी बिजी रहता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं खुद ही एक स्टूडियो बनाऊँगा। और वो स्टूडियो न सिर्फ मेरे लिए हो गया, बल्कि चेतन जी की सहायता से कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर हुनर बहुत है, वो पंजाब की धरती पे तो आई थिंक कैसी कैसी आवाज़ें हमें आई जो पूरी दुनिया में गूंजती हैं वो आवाज़ें, और जिनको सुन सुन के पूरी दुनिया मस्त हो जाती है। वो आवाज़, सिंगिंग की आवाज़ पंजाब से निकल के आती है। तो मैं जल्दी एक स्टूडियो बनाने वाला हूँ, और उसका पर्पज़ यही रहेगा, जो इंसान गाने का हुनर रखते हैं, गाना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो उनको स्टूडियो में इनवाइट किया जाएगा, उनकी गायकी को काफ़ी जितना हो सकेगा प्रमोट भी किया जाएगा। यू नेवर नो कब कौन सा वीडियो, कब कौन सी सिंगिंग वायरल हो जाए और किसी इंसान का करियर बन जाए। भगवान ने, सरस्वती माँ ने मुझ पर कृपा की, तो बहुत जल्दी अगली जो हमारी शूटिंग, अगला जो हमारा इंटरव्यू होगा वो स्टूडियो में ही होगा, और मैं भी गा के सुनाऊंगा वहाँ पे, और भी सिंगर होंगे तो वो भी करेंगे। और
बस छोटी सी बात है, मैं कौन होता हूं किसी के लिए करने वाला। चेतन जी जैसे मित्र हैं और भगवान की कृपा है जो इंसान को कुछ करने के लिए मोटिवेशन देती है, वही मोटिवेशन मुझे मिला है और मैं उसका पूरा पूरा यूज़ करूंगा। और आने वाले टाइम में शिव कुमार बटाली जी की पावन धरती पे म्यूज़िक के लिए कुछ करके अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। और बुक्स की जो बात की, ये तो कम बुक्स हैं मेरे पास। बुक्स ऊपर अभी आपको लेकर जाएंगे, 4 से 5 लाख किताबें पढ़ी हैं। किताबें समझ लो कि जैसे इंसान की नसों में खून बहता है, मेरी नसों में खून के साथ साथ किताबें भी बहती हैं। आई बिलीव बुक्स। म्यूजिक ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। म्यूजिक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਯਾਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। अच्छा, यादें गाने, ठीक है, कोई बात नहीं, यादें ही सही, गाना तो गाना है। वेल, पॉजिटिव नोट। ला 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 ला। अलग हम तुम तो क्या हुआ, हमारी यादें रहेंगी सदा। अलग हम तुम तो क्या हुआ, हमारी बातें रहेंगी सदा। चले थे कुछ पल साथ हम तुम, फिर हो गया अलग रास्ता। जो होना था वो हो ना सका, जो ना होना था वो हो गया। बस यादें, बस यादें, बस यादें रह गई है, कुछ तेरी कुछ मेरी, बस बातें रह गई हैं। तो दोस्तों, मैं इमोशनल हो जाता हूँ और कंट्रोल नहीं कर पाता, मेरी गायकी के इधर उधर सुर हो जाते हैं। मैं तैयार भी नहीं था, चेतन जी आए तो मुझे लगा मैं तैयार ना हूँ, जैसा है वैसा ही सही। तो बस ये मेरे जज्बात थे, मेरी शुरुआत थी, और इसके बाद बहुत कुछ है जो आने वाले टाइम में आप देखेंगे। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। आज मैं आपको अपनी बुक्स का कलेक्शन दिखाता हूँ। वो बुक्स सिर्फ बुक्स ऐसे ही पढ़ी नहीं, फ्यूचर में उसको लेके भी मेरे कई प्लान्स हैं। अरे वाह, इन बुक्स का यूज क्या करना है। देखो, मैं बटाला में अभी कुछ टाइम ਬੱਲੇ 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 ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। कुछ ही टाइम पहले बटाला ਇਹਦੀ में, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟੋ ये मेरे पिताजी का गोदाम था। अच्छा, मेरे भाई का और मेरे पापा का बुक्स का बिजनेस था। तो दिल्ली में दरियागंज बुक मार्केट होती है, एक किताबों की मार्केट, सेकेंड हैंड किताबों की मार्केट, वहां पे गोदाम था हमारा। और प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया, और अब वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी किताबें उनकी यादों के रूप में मेरे पास हैं। और अभी हम बटाला में कुछ ही महीने आए, तो मैं इन्हें खोल भी नहीं पाया हूँ। इन्हें खोलने में कम से कम मुझे 1-1.5 साल लग जाएगा। बिकॉज अलग अलग तरह की मैं ऐसे रैक्स बनवा रहा हूँ यहाँ पे, और उन रैक्स में लगवाऊंगा किताबें। और जल्दी ही बहुत अलग रैक्स भी होंगे। देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक कई सब्जेक्ट पे किताबें हैं, और कई सब्जेक्ट के मतलब शायद हर सब्जेक्ट पे मिलेंगी किताबें। बनवाए थे कि खुद ये बनवाए हैं अभी, और अभी काम चलेगा और बनेंगे सभी दीवारों में, तभी किताबें आ पाएंगी। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਰੀਨਾ ਜੀ। ये मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਜਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੋ wife- ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। मैनू है आस तेरी, तू आसरा है मेरा, तेरी याद विच ही बीते मेरा शाम ते सवेरा। मैनू है आस तेरी, तू आसरा है मेरा, तेरी याद विच ही बीते मेरा शाम ते सवेरा। धन्यवाद जी। ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। बिल्कुल, इन किताबों में आपको शायद दुनिया का हर एक सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, किताबों की भी एक दुनिया होती है। इसमें आपको लव स्टोरीज मिलेंगी, एक्शन स्टोरीज मिलेंगी, मिस्ट्री, सस्पेंस, लिटरेचर मिलेगा आपको, धार्मिक किताबें मिलेंगी आपको, मोटिवेशनल किताबें मिलेंगी आपको, लोगों की बायोग्राफी, लोगों की जीवनी, ये सब मिलेगा। मतलब ऐसा कुछ शायद मुझे लगता नहीं जो आपको नहीं मिलेगा। हिंदी में किताबें हैं, इंग्लिश में किताबें हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी हम पंजाब में आए हैं तो पंजाबी में किताबें नहीं हमें मिल पाई, लेकिन फ्यूचर में मेरे पास प्लान है इन किताबों को लेके भी कुछ करने का। मैंने एक वेबसाइट बनाई है buysecondhandbook.com,
और उसमें हम इन किताबों को सस्ते रेट में लोगों को ऑफर करें अगर लोग खरीदना चाहें तो। और अभी शुरू ही किया है, तो आने वाले टाइम में शायद उसका भी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हमें ऑर्डर्स आने लगे हैं हल्के फुल्के। और किताबों की दुनिया, जैसे मैंने बोला, और सिंगिंग मेरा शौक है, तो किताबों के लिए भी मैंने एक गाना लिखना शुरू कर दिया है और 2 ही लाइन उसकी बोलना चाहूंगा मैं। किताबों की दुनिया ये है ख्वाबों की दुनिया, सवालों की दुनिया, जवाबों की दुनिया, इन्हें साथ में रखें हम, ये दोस्त हमारी है, हमें जीना सिखाती है ये किताबों की दुनिया। किताबों की दुनिया के लिए शुरुआत की है, मैं जल्दी से लिखूंगा भी। और ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੀ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ सनी वास्ते गाना जरूर है फिर, क्योंकि जो सनी वास्ते गाना नहीं फिर व्लॉग ही बेकार है। नहीं, सनी वास्ते गाना जरूर। देखो, मेरी जिंदगी में 3 चीजें हैं, एक मेरी वाइफ, एक मेरा म्यूजिक और एक किताबें। इन तीनों से मुझे बहुत प्यार है। मेरी किताबों ने मुझे पढ़ने की वजह से मुझे लिखना सिखाया, और जब मैंने लिखा तो मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ लिखूं, ये मुझे इसने इंस्पायर किया। तो मेरी वाइफ रीना, लेकिन इसका नाम घर का सनी है, तो सनी के लिए मैंने जो लिखा, अब मैं आपको 2 लाइन वो सुनाऊंगा, ठीक है। क्या करेंगे पैसा, क्या करेंगे मनी, खुल गई है किस्मत जो मिल गई है सनी, ये है मेरी डार्लिंग, मैं हूँ इस कहानी, जोड़ी हम दोनों की ऊपर है बनी। ला 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 ला। मेरी जिंदगी तो कोई खास नहीं थी जब तलक सनी मेरे पास नहीं थी, जब मिली मैं और मुस्कुराने लगा, जीने का मजा और आने लगा, मुझको इस कदर सनी का प्यार मिल गया, मस्तियों का मौका बार बार मिल गया, करता हूँ मैं मेरे उस खुदा का शुक्रिया जिसने मुझको सनी जैसा यार दे दिया। ला 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 ला। तो दोस्तों, लेने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ करना। धन्यवाद। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा, हमारे भाई चेतन जी का बर्थडे 14 फरवरी को, वैलेंटाइन के दिन, प्यार के दिन प्यार का पैगाम देने वाले इंसान का बर्थडे है। चेतन जी, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। और मेरी माँ भी हैप्पी बर्थडे के लिए आपको बधाई देना चाहिए। बेटे का बर्थडे बहुत बधाई हो और हर साल खुशी से बर्थडे मनाए। हैप्पी बर्थडे टू। थैंक यू। तारे तारे जितने नील गगन में तारे, तारे तारे जितने नील गगन में तारे, तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल के दिनों 50,000, तारे तारे जितने नील गगन में तारे। मेरी माँ एक्चुअली हेड पेशेंट है, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, कुछ और हाँ, की बोलेंगे। प्रॉब्लम। और क्योंकि मुझे गाने का शौक, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और क्योंकि मुझे गाने का शौक है, तो एक लाइन बर्थडे के लिए मैं भाई के लिए बोलना चाहूंगा, ठीक है। हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, दिल मेरा बार 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 ये कहे, सब दिन हो तेरे खुशियों भरे, कभी भी नियर तेरे आए नहीं गम, तेरी जिंदगी मुस्कुराए हरदम। हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चेतन जी, एडवांस में आपका बर्थडे, और भगवान चाहते जल्दी हम केक काटते हुए बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और बर्थडे व्लॉग भी हमारा आपके सामने रहेगा। थैंक यू सो मच।